तो हम पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज एक्सरसाइज 13.5. सो वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज हम पूरी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ पेशेंट बच्चों ने होमवर्क नहीं करा है. लेट देम बी इन द रिकॉर्डिंग फॉर एवर. Anyways, so a matchbox measures force 2 by 1. What will be the volume of the packet containing such 12 boxes? Total volume would be 12 into volume of one matchbox. So this would be 12 into L into B into H, which is 12 into 4 into 2.5 into 1.5. So this is equals to 12 into 15, and this is equals to 12 into 15 is बोलो 180 सेंटीमीटर क्यूब. क्या 2.5 into 4 तो 10 हो गया ना, और 10 into 1.5 3 हो गया. तो यार यही आंसर है ना. 2 to 5 आ रहा है. चेक करूं, ये भी गलत कर रहा हूं मैंने कुछ. लेट मी चेक. So this is 12 into 4 into 2.5. Where did I go wrong? So 4 into 2.5 should be 10. Like, what's the problem here? मेरा ये आ रहा है 180 आ रहा है ना. सर 180 180 करा था मैंने बेटा, सही करा था. So this is 12 into 15. This is equals to 180 centimeter cube. पीछे वाला 180 होगा आई गेस. पीछे 180 है. A cuboidal water tank can hold. अब cuboidal water tank is 6 meter long. So इसकी लेंथ दे रखी है 6 meter. ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर एंड हाइट दे रखी है क्या. कैसी दोबारा बोला. नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी भी शेप का हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है सिलेंडर का लिए. घरों के नीचे जो टैंक्स होते हैं वो क्यूबॉइडल तो होते हैं. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. चलो पहले वॉल्यूम निकालते हैं. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L into B into H, which is equals to 6 into 5 into 4.5. So this will come out to be 4.5 into 6 कितना हो जाएगा. 4.5 into 2 is 9. 3 9 27 into 5. So 27 by 2 would be 135. So 135. So this is 135 centimeter cube. ये आ गई वॉल्यूम. Now we know that 1 meter cube. हाँ मीटर में था तो ये this is meter cube. So we know that 1 meter cube is equals to 1000 liters. So 135 meter cube would be how many liters? 135 into 1000 liters, which is 135,000 liters. ठीक है. ये चीज इवन दो एनसीईआरटी ने सिर्फ एक बार मेंशन करी है, ये प्लीज स्टार बना के अच्छे से लिख लो बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. 1 meter cube is equals to 1000 liters. सिक्स क्वेश्चन में भी यूज हुआ है. और हर बार मेंशन नहीं करते हो, और पेपर में आपको मेंशन नहीं मिलेगा probably. Next, third question. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. Okay. हमें height निकालना है तो 380 cubic meters of liquid. So we have been given the volume as 380 cubic meters. So meter cube. And then हमें length दे रखी है 10 meter. Breadth दे रखी है 8 meter. Height हमें निकालनी है. So we know that volume is equals to L into B into H. This means 380 is equals to 10 into 8 into H. So 0 0 कट गए. 8 से डिवाइड करेंगे तो H कितना आ जाएगा. 4.75 meters. So this is your height. Simple questions are there, like very basic questions. Had you tried them, it would have taken barely 10-15 minutes. Next question, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long. So we have length as 8 meters, breadth as 6 meters, and height as 3 meters at the rate is given
₹30 per meter cube. So we know that cost will be equal to rate into volume. So this is equals to 30 into volume LBH. This means 30 into 8 into 6 into 3, which would be equal to 4,320. 4320. Okay. रुपीस में आएगा ये, ₹30 तक। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? सिंपल है, बेसिक है। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ सर। ये आगे बैठ जाओ ना, आगे बैठ जाओ, खाली तो सीट, आगे बैठ जाओ। The capacity of a cuboidal tank is 500,000 liters of water. So हमें पता है कि ये लीटर्स में होता है, 1000 liters is 1 meter क्यूब। 1 2 3 4 1 2, हाँ सॉरी माय बैड। So yeah, so we know that 1000 liters is 1 meter cube. So इसे अगर हम मीटर क्यूब में निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। सो हमें मिल गया 50 मीटर क्यूब, है ना। अच्छा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ इज 2.5 मीटर एंड डेप्थ विच इज हाइट इज 10 मीटर्स। सो हमें क्या निकालना है, ब्रेथ। करते हैं, वी नो दैट 50 मीटर क्यूब is equals to L into B into H. So 50 is equals to 2.5 into B into 10. So 22 आ जाएगा ये बेसिकली। B is equals to 2 meters आ जाएगा। ठीक है, ये 2.5 into 10 25 हो गया, 50 by 25 is 2 meters. A village having population of 40,000 requires 150 liters of water per head and okay. चलो देखते हैं क्वेश्चन। सो हमें पता है पॉपुलेशन 400 है, तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट देखते हैं। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, या फिर एक बार में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या 10-10 स्टेप में करेंगे। सो नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज water will last is equals to volume of water in tank divided by volume of water used per day. So volume of water in tank कितना होगा, सिंस ये LBH टैंक हमारी किस शेप में, टैंक हमारी किस शेप में, क्यूबॉइड में। तो L into B into H डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे इज 4000 into 150, क्योंकि सबको 150 चाहिए पर डे। ठीक है, बट हमें इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम इन लीटर्स कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले तो ऑलरेडी लीटर्स में, ऊपर वाले को इन लीटर्स कर देते हैं। तो लीटर्स करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20। हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो वेरी गुड, हमें 1 मीटर क्यूब के साथ 1000 लीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 लीटर्स में आ गया ये, डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 150। सो जीरोस उड़ गए एंड देन 4000 है तो 15 10 बचाए, 0 से 0 कट गया। सो वी हैव 2 into 6 by 4 which is बहुत कम दिन बचेगा, तो 3। so we have 3 days, 3 दिन बचेगा पानी। 150 लीटर ही तो यूज कर रहे हैं, 150 ज्यादा है बेटा। एक बार के शावर में नहाते हो तुम 150 लीटर। सर बहुत ज्यादा पानी पीते होंगे वो लोग। अरे पानी के और भी यूज होते हैं यार, पिए 150 लीटर कौन पानी पीता है, हाथी थोड़ी है बेटा। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं।
Go down measures 40, 25, 15. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5, 1.2, 0.5 that can be stored in the go down. So number of boxes अगर हमें निकालना है, number of boxes, this is equals to volume of go down. अगर मैं go down के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं एक, सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स का वॉल्यूम, तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे. Volume of one box is equals to 40 into 25 into 15 divided by 1.5 into 1.25 into 0.5. चलो तो इसे सॉल्व कर देते हैं. 40 into 25 into 15 divided by 15 into 125 into 5 into ये 3 zeros लगाते हैं 1000. ठीक है, तीन ही तो लेंगे. अच्छा चार लेंगे ठीक है. तो 5, 3, 15, 25, 1, 25, 5, then 5, 8, then 3, 1, 3, 5, 15, and then 5, 2,000. So 8 to 16,000. 16,000. ठीक है, 16,000 बॉक्सेस लिख लो. A solid cube of side 12 centimeter. So we have a solid cube of side 12 centimeter. इसे हमने क्या करा है, 8 pieces में कट करा है of equal volume. So इसका जो भी वॉल्यूम होगा डिवाइड बाय 8 कर देंगे हम. So we have volume of small cube. ठीक है, 8 क्यूब्स में कट करा ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो 8 into वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब. सो 8 into वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल A क्यूब. सो 8 into a क्यूब इज इक्वल्स टू 12 क्यूब. a क्यूब इज इक्वल्स टू 12 क्यूब divided by 8. This can be written as a cube is equals to 12 cube by 2 cube, which is 12 by 2 whole cube, which is 6 cube. So a क्या आ गया, 6. So like rather than solving, मैंने बस थोड़े exponents use करके directly solve कर दिया, much easier. So 6 centimeter आ गया आपके पास small a. तो हमें क्या निकालना है, what will be the side of mu cube, हमने निकाल लिया 6 centimeter. Also find the ratio between their surface areas. तो उनके surface area के बीच में अगर हमें ratio निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, we have to calculate the ratio between 4a square divided by 4 small a square. 4 कट गए, a square is 12 square divided by small a square is 6 square. So this is 2 into 2, 6 आ जाएगा 4. तो रेशियो आ गया 4:1. समझ आया सबको क्या करा, ये मैंने कैलकुलेशन बाय द वे 12 into 12 by 6 into 60. So 6 to 12, 6 to 12, तो 2 into 2 4 आ गया. रेशियो आया, द लार्जर का सरफेस एरिया इज टू स्मॉलर का सरफेस एरिया इज 4:1. ठीक है. अच्छा, अ रिवर इज 3 मीटर डीप. सो मान लेते हैं एक रिवर 3 मीटर डीप है एंड 40 मीटर वाइड. तो समवॉट लाइक दिस 40 meters. ठीक है, एंड देन ये ऐसे 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 फ्लो कर गई. डायग्राम से समझ आ रहा है? नहीं, मैं दोबारा बनाता हूँ. मतलब क्यूबॉइड जैसी रिवर है. एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, रिवर्स आर टेक्निकली क्यूबॉइड्स, नॉट लाइक एग्जैक्ट क्यूबॉइड्स, बट या क्या, नहीं नॉट रियली. कर्व थोड़ी होता है, नॉट ऑलवेज. The thing is कि वाटर के फ्लो की वजह से ना इट रिजेंबल्स मोर लाइक अ क्यूबॉइड रादर देन अ सिलेंडर. कभी कभार तो कुछ भी हो सकता है, कभी कभार तो स्फेयर भी बन सकता है. अच्छा एनीवेज, तो मान लो ये आपको दे रखी है डेप्थ, मतलब 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप, एंड देन इसकी विड्थ दे रखी है आपको, विड्थ इज गिवन 40 मीटर.
एंड इस डायरेक्शन में लेंथ बेसिकली हमें उसकी नहीं पता है, ठीक है। सो ये ऐसा सा आपका क्यूबॉइड सा बन रहा है। सो वी हैव बीन गिवन विड्थ, या फिर ऐसे लिखो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 मीटर, हाइट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। क्या हाँ इजी है, देखो इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ, यहाँ पे देखते हैं कन्वर्जन करते हैं। सो 2 किलोमीटर पर आवर मतलब 2 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, है ना। मतलब 2000 मीटर्स इन 60 मिनट। क्लियर है। अच्छा, हाउ मच वाटर विल फॉल थ्रू द सी इन अ मिनट, अगर हमें 1 मिनट का निकालना है तो 2000 डिवाइडेड बाय 60 पर मीटर पर मिनट, है ना। सो जो हमारी लेंथ आ गई, 1 मिनट में कितनी लेंथ कवर करेगा पानी, 1 मिनट में लेंथ जो कवर करेगा पानी, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 60 meters, which is 300 by 1 second, which is equal to 100 by 3 meters. बेसिकली क्या हुआ, मान लो पानी यहां से स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, जो जैसे हमने कन्वर्ट करा 2000 meters in 60 minute, which means 2000 upon 60 per minute. तो 1 मिनट में पानी कहां तक पहुंच जाएगा, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट वुड बी 200 डिवाइड बाय 6, है ना। सो ये बेसिकली क्या आ जाएगी, टेक्निकली ये आ जाएगी लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस होल पार्ट, जितना वाटर फ्लो करा होगा इतनी देर में। तो दिस का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सो बस आप एल इंटू बी इंटू एच कर दो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, दिस इज इक्वल्स टू 100 by 3 इंटू बी 40 इंटू एच 3, दिस इज 4000 4000 मीटर क्यूब। क्यूब। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट में ही थोड़ा कंफ्यूजन होती है जिसको भी होती है कि लेंथ क्या दे रखा है, एंड एक बार समझ गए तो क्वेश्चन सिंपल। ओके, सर आपने इसका कल कुछ नाम बताया था सर इस कॉन्सेप्ट। आई जस्ट लाइक टू कॉल इट फ्लो रेट, लाइक ऐसा कोई नाम नहीं है इसका, आई जस्ट कॉल इट फ्लो रेट। फ्लो रेट क्योंकि हमें फ्लो रेट दे रखा है ना, किस स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई आई कॉल इट। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन और समथिंग। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.6 की। So the by the way 13.6 में हमें सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज pi r square h. So let's see the हाँ तो वो तो पता ही है हमें ऑलरेडी, ये तो नया तो यही है ना। The circumference of the base of a cylinder is 132 centimeter. So 2 pi r की वैल्यू हमें दे रखी है 132 सेंटीमीटर, and its height is 25 centimeter. हाइट दे रखा है हमें 25 centimeter. Find how many liters of water it can hold. So let's see how many liters of water it can hold. कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ से पहले हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। So 2 into 22 upon 7 into r is equals to 132. So 2 6 12 2 6 12 22 333, r कितना आ गया 7 3 21 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आ गया 22 upon 7 into r which is 21 into 21 into height which is 25. So 7 321. So this is what is the volume. 22 into 3 66 into 21 into 20 circumference। हाँ सही तो कह रहे हैं, हाँ तो बस ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, दिस इज कितना आ रहा है मीटर्स में निकाला आपने, सेंटीमीटर में कितना आएगा, तीनों को प्रोडक्ट करो बताओ क्या आ रहा है, जल्दी मैं कर दूं क्या। सर 34,650 सेंटीमीटर। 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। नाउ वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। सो 34,650 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है।
ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स, सो दिस 0 0 कट गए, सो दिस इज 30 कितना आएगा, 34.65 लीटर्स। दिस इज योर आंसर। समझ आया सबको? इस क्वेश्चन। Next question says the inner diameter of the pipe is 24 and the outer diameter is 28. तो हमारे पास inner diameter 24 है, outer diameter 28 है. So somewhat like this, outer diameter 28, inner diameter 24. So length of the pipe is 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ पाइप. तो मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने पढ़ा है मास निकालने के लिए हमें, देखो डेंसिटी वाज व्हाट, डेंसिटी वाज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना. सो दिस इज सिंपली आपका जो भी वॉल्यूम आएगा विच इज पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी 0.6 आपको इससे मल्टीप्लाई करना है. तो 22/7 इंटू, ओ सॉरी, मास के लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम के लिए आपको बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा. तो विच इज बड़ा सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस R1 R2 लिख देता हूं मैं, पाई R2 स्क्वायर एच. सो यहां से आप कॉमन क्या क्या ले सकते हो, यू कैन टेक कॉमन हेयर पाई एच, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, 0.6 मल्टीप्लाई, वैल्यू डालते हैं 22/7 इंटू हाइट 35 इंटू 28/2 विच इज 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 0.6 विच इज 6/10 और 3/5. तो 7 5 35 5 5 कट गए, 22 इंटू 3 है, सो 22 इंटू 3, 14 स्क्वायर 190, मतलब वैसे तो वो भी लगा सकते हो थ्योरम, बट दिस इज 196 माइनस 144, सो 66 इंटू वी हैव हियर 2 and 19 minus 14 is 52. तो 66 इंटू 52, फाइनल आंसर कितना आएगा, बोलो. 3432 सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम्स, 3432 ग्राम्स या फिर 3.432 kgs. ठीक है. सो ये करना था आपको, जब भी आपको पाइप का डेंसिटी निकालना है, बेसिकली दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, सो आप बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर का माइनस कर दो. ओके देख लो ये. किसमें डाउट है, सेकंड 6 एक तो हो गया. अच्छा पहले मैं एक बार डाउट्स लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक वील हैव टाइम टू टेक ऑल क्वेश्चंस. सो पहले एक बार 6th and 7th ले लेते हैं जिनमें बच्चों को डाउट है, एंड देन बचे हुए क्वेश्चंस पे आ जाएंगे वापस. सो द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज कैपेसिटी दे रखी है हमें, वॉल्यूम इन लीटर्स 15.4 लीटर्स. सो किसी एक बताओ यूनिट, सबको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर में कर दूं सबको या मीटर्स में? सब सेंटीमीटर में. मीटर्स में कर दो. तो अब पहले सेंटीमीटर में करते, कोई नहीं, शायद उससे ज्यादा आसान हो जाएगा. तो हाइट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 15.4 है, वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर्स. ठीक है. बाय द वे आता कैसे है, तो आपको याद है आपने पढ़ा था कि 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, है ना. सो 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब. कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 100 के 100 क्यूब, तो 100,000,000 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये 3 जीरो से इसके 3 जीरो कट जाएंगे, लेकिन 3 रह जाएंगे, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू
1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब आप एक से ही दोनों याद कर सकते हो, डोंट नीड टू रिमेम्बर बोथ ऑफ देम, क्वाइट सिंपल। तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 15.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल्स टू 15400 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मिल गया हमें। सो हाउ मच स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट। बेसिकली हमें पहले तो एरिया निकालने की जरूरत है हमें, लेकिन कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, रेडियस निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस मीन्स 15400 is equals to 22/7 into r square into h which is 100. So 100 0 कट गए, then 11 2 22, 11 1 11, 11 4 44, then we have 2 7 14, तो ये 7 स्क्वायर आ गया। r स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, r कितना आ गया 7। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट। तो बेसिकली इसमें हमें टीएसए ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, टीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल दोगे। मैं नीचे यहाँ पे करता हूँ टीएसए। टीएसए क्या होता है, पाई 2 पाई आर, आर प्लस एच। सो दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू r7 इंटू 7 प्लस 100। सो 7 7 कट गए, 44 इंटू 107। सो योर आंसर विल बी कितना आएगा, 44 इंटू 107 करो। सर 4708। हाँ सही कह रहे हैं, 4708। चेक करो पीछे आंसर। ठीक है। सो दिस इज द एरिया, मीटर यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। क्वेश्चन समझ आया सबको। तो इसमें आपको पहले लीटर्स के थ्रू वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा, वॉल्यूम से आप रेडियस निकालोगे, एंड देन रेडियस से आप, सिंस क्लोज सिलेंडर है तो आपको टीएस से निकालना पड़ेगा। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, मतलब वही बोल रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, मतलब ये बेसिकली ये हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है, तो आप मीटर स्क्वायर में करोगे तो इसे डिवाइड बाय 4 जीरो कर दो तो 0.4708 मीटर स्क्वायर, अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 7th। A lead pencil consists of a लिख लिया सबने, लिखो लिखो। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder filled with a graphite and the interior. The pencil of diameter 7 millimeter and diameter of graphite is 1 millimeter. Okay. The length of pencil, point the volume of wood. अच्छा, ये भी एक hollow cylinder की तरह ही concept है. So we have a cylindrical pencil. ठीक है, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है, जिसकी लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर हमें दे रखा है 7 मिलीमीटर, लेकिन इसके अंदर एक ग्राफाइट की बहुत पतली रॉड है जो ऑब्वियसली पेंसिल जिसकी वजह से चलती है, दिस इज 1 मिलीमीटर। सो बेसिकली अगर वुड का एरिया निकालना है मुझे, मतलब मैं बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देता हूं। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर minus volume of small cylinder. So this is equals to pi r square h minus pi r square h. So height दोनों में सेम है तो pi h कॉमन ले लेते हैं, r square minus r square, लेकिन हाइट को कन्वर्ट कर दो मिलीमीटर में तो दिस इज 140 मिलीमीटर। ध्यान रखना इस चीज का, तो सब मिलीमीटर में होना चाहिए। तो दिस इज 22/7 इंटू 140 इंटू आर स्क्वायर, तो 14/2 स्क्वायर, सॉरी 7/2 स्क्वायर, 7/2 स्क्वायर माइनस
1/2 स्क्वायर. So this will come out to be, सॉल्व करते हैं इसे आगे. तो 7 2 14 2 2 4 40 into 7 square 49 minus 1/4 110. So 110 into 48. So we have 48 5 28 5280 millimeter square, या फिर this will come out to be 52.8 centimeter square. चेक करना आंसर. सही. सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में दे रखा है? मीटर. मिलीमीटर में दे रखा है. पीछे. पीछे चेक करो. टाइप 128 दे रखा है पीछे. अच्छा वॉल्यूम है ना, सॉरी 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 माय बैड. तो एक क्यूब होगा, वॉल्यूम है तो एक क्यूब होगा, एंड क्यूब होगा तो 3 0 माइनस तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सही है. समझे ना तुम क्यों हुआ? बिकॉज 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो अगर क्यूब कर दूंगा तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब. मीनिंग इससे मुझे 1000 डिवाइड करना है, 3 पॉइंट शिफ्ट करें हमने, 5.28 आया. ओके, समझ आ गया सबको? ठीक है. अब बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना. डाउट्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर भी ले लूंगा, बट मैंने अभी जो डाउट्स थे एंड मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हम कर सकते थे वो कर लिया. क्या एक बार नहीं? अच्छा ग्राफाइट का भी निकालना है. हाँ तो छोटे वाले का निकाल दे बस. ये जो इस पार्ट का है इसका निकाल दे, वो तो सिंपल सिलेंडर का वॉल्यूम.